नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी, और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, शलोम, नी हाओ, कोनिचिवा। प्रदीप जी, हमारी आंखों जैम्बो। That's right, that's in Swahili. उसके पहले konnichiwa is hello for Japanese, ni hao is hello for Chinese. That's it. So we've got a lot of we have a huge audience over there, and we try to say hello in the language of the country. I hope I got the pronunciation right. I know Pradeep Ji's pronunciation is absolutely perfect, but as far as I'm concerned, I'm not really sure whether I've got ni hao right or not. But all the same, I've been in Africa for 1 year, so I guess fantastic. pronunciations are perfect. Oh, fantastic! Absolutely fantastic. One of these days, we must absolutely do a program on East Africa. That would be nice. Dar es Salaam, Zanzibar. Dar es Salaam and Zanzibar. Absolutely, Nairobi. absolutely, and Beautiful places. lovely places, lovely fairy tale sounding magical places. You know, you've got Zanzibar in practically every adventure book that you read as a boy. As you grew up, all the seafaring tales always had Zanzibar and places, and Dar es Salaam, of course. India and Zanzibar serve an old, centuries-old relationship. That's right, absolutely. Now, I tell you what, as far as the political scene is concerned, everything seems to be falling in place for Mr. Modi. I mean, you know, जहां पर लगता है कि भाई अभी इंडिया अलायंस हैज गॉट इट्स एक्ट टुगेदर, एंड सडनली बिल्कुल दिखता है कि एकदम बिखर गए। अब महाराष्ट्र की बात कर लीजिए प्रदीप जी, प्रकाश अंबेडकर जी, उन्होंने कह दिया थैंक यू वेरी मच, मैं आपके साथ नहीं हूं, गुड बाय। यहां पर जहां कंसोलिडेटेड इंडिया अलायंस को लग रहा था कि हो सकता है कि 25 से 30 सीटें भी मिल जाएं, अब मुझे नहीं लगता उनको 10 सीटें भी मिलेंगी प्रदीप जी। they'll get even 10 or 15, I don't know. I mean, of course I may be wrong, but I don't think so. Sir, the first time we are seeing that Sharad Pawar जी खुद अपने आप इन्वॉल्व हो गए बारामती और वेस्टर्न पूरे महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र में। इट वाज अ बोस्ट ऑफ शरद पवार जी that I don't go to Baramati during the elections. कहते थे, I am so confident. कहते थे, sorry, कहते थे, that is a horrible hiccup. I am so confident of the work that I've done for the people of Baramati that I don't tour Baramati during the election. Yes. I give them a free hand and they elect me with huge vote share. He never used to address even a single rally there. Yes. And today, every day is there. Every day is there in Baramati, and the entire Paschim Maharashtra touring, working, doing things. The only problem is Mr. Ajit Dada Pawar के जो वर्कर्स हैं उनको शायद थोड़ा सा ही अजीब लग रहा है कि यार सिर्फ 4 सीट दे रहे हो, मतलब ये क्या हुआ, 5-6 तो देनी चाहिए। Of course, very shortly we'll come to know exactly where everybody stands. But since the BJP list has not been released as yet, but I hope, they are able to sort out their differences. Let's go straight across to Mr. Modi. पंकज मोदी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के। पंकज मोदी साहब नमस्कार। नमस्कार। सर जय सिया राम, कैसे हैं? जय सिया राम, अच्छा हूँ, आप लोग कैसे हैं? सर बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो इस बार बीजेपी के 400 पार, मतलब सॉरी एनडीए के 400 पार, आपके 370 पार लग ऐसा रहा है। तो मतलब मोदी जी का जो जादू है हर जगह पे काम कर रहा है, कहने का मतलब ये हुआ, जहां जाते हैं जो कुछ भी बोलते हैं लोग बिल्कुल पागल हो जाते हैं उनके पीछे। ये क्या राज क्या है, ये जरा बताएं सर प्लीज। ये जनता जो कभी किसान हो, युवा हो, वो जो अपने निम्न स्तर से उठकर ऊपर आई है, तो उसका परिणाम है वो एक भावना देखते हैं मोदी जी में कि उन्होंने उनका जीवन स्तर सुधारा है और देश को आगे लेकर गए हैं। तो ये भावना के कारण मोदी जी की बातों को हाथों हाथ जनता लेती है, और उनके भाषण देने का तरीका इतना प्यारा है कि जनता के दिलों में डायरेक्ट वो पहुंचते हैं। तो इसके लिए जनता उनकी बातों को से पूरी तरीके से सहमत रहती है। जबरदस्त। लेकिन मोदी जी का जहां तक प्रश्न है, ये भी कहा जा रहा है कि मोदी जी 2024 के चुनाव की तरफ देख ही नहीं रहे। वो कहते हैं यार 2047 के भारत की बात करो, हम बात करेंगे 2047 के भारत की। ये 2025, 2029, 2034 ये सब क्या है, ये छोड़िए, आगे की बात करते हैं। तो ये क्या पार्टी में ऐसी चर्चा है सर?
जी बिल्कुल, भारत को विकसित बनाने की चर्चा एक कार्यकर्ता से लेकर एक पूरे पदाधिकारी की जो पार्टी के हैं, चाहे एनडीए के घटक दल हैं, वो इस चीज को समझ गए हैं कि जो प्रधानमंत्री जी ने जो अपना विजन दिया 2047 के लिए, उसके लिए कटिबद्ध हैं। और 2024 के बाद 2029 का भी चुनाव हम लोग जीतेंगे। इस 2024 में तो 400 पार का हमारा जो नारा है वो कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा 2029 की भी हमारी एक पूरी प्लानिंग है, हर चुनाव की प्लानिंग। उसके अलावा देश को विकसित बनाने की हमने पूरी रूपरेखा तैयार कर रखी है, तो उस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। और निश्चित रूप से 370 बीजेपी क्रॉस करेगी और 400 का पार का जो एनडीए का आंकड़ा प्रधानमंत्री ने जिया एक लक्ष्य दिया है, वो हम लोग को पूरा करेंगे। कांग्रेस का नारा है, कांग्रेस लगातार एक के बाद एक सोशल मीडिया में नारा उनका है, मेरे विकास का दो हिसाब, मेरे विकास का दो हिसाब। अच्छे दिन के दी दुहाई, अच्छे दिन की थी आपने दुहाई दिए थे, महंगी रसोई, महंगी दवाई, महंगी पढ़ाई, मेरे विकास का दो हिसाब। तो हर चीज महंगा है, रसोई महंगी है, पढ़ाई भी महंगी है, कांग्रेस का कहना है। आप हिसाब दीजिए मोदी जी, हिसाब दीजिए, मेरे विकास का दो हिसाब। मैं देता हूं हिसाब। 2014 से पहले बहुत सारे दवाइयों की कीमत एकदम आसमान को छू रही थी। प्रधानमंत्री जी ने एक विजन दिया कि जन औषधि केंद्र खोलने की, बहुत सारे दवाइयां जो बहुत मुश्किल में मिलती थी उनको बहुत छोटे स्तर पे बहुत सस्ते दामों में उन्होंने देने की कोशिश की। किसानों को उन्होंने आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा था। और उसके बाद फिर युवाओं को बहुत सारे स्टार्टअप के लिए हमने बहुत सारी योजनाएं चलाई। तो इस तरह से कहना कि अन्याय मतलब कांग्रेस का कि ये सिर्फ महंगाई बढ़ गई है या फिर हो जो भी उन्होंने चीजें दी है, तो वो सिर्फ भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है। जो कांग्रेस के इनकम खत्म हो गए हैं, जो कांग्रेस के जो हमेशा चलते थे भ्रष्टाचार करके देश को लूटने का कोशिश करते थे, उनकी आय खत्म हुई, इसलिए वो इसी तरह का नारा दे रहा है। इस पे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जनता समझती है बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन यहाँ पर एक चीज है, इस वक्त हमारे साथ हैं पंकज मोदी साहब, भारतीय जनता पार्टी के। सर ऐसा है कि कांग्रेस हो गई या आम आदमी पार्टी हो गई, वो बार बार कोट कर रहे हैं किसको, जर्मनी को, वो कोट कर रहे हैं एक दो और मुल्कों को, अमेरिका को, कि भाई देखिए इन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी है केजरीवाल जी को लेकर के कि किस प्रकार केजरीवाल जी को पकड़ा गया है और हम उम्मीद करते हैं कि उनको फेयर ट्रायल मिलेगा। भाई ये तो सरासर किसी देश के आंतरिक मामले में दखल है। मतलब आप अपने देश को संभालो ना भाई। अमेरिका को और बाकी सबको ये बोलना चाहिए भैया आप अपने देश को संभाल लो। किस प्रकार वहां पे रंग भेद की नीति आज तक आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, कैसे कैसे कितने कितने लोगों को, निहत्थे लोगों को आप मार देते हैं। आपके खुद के डेटा के मुताबिक 781 अफ्रीकन अमेरिकन को मार दिया गया ट्रैफिक लाइट पे, सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने अपनी गाड़ी की विंडो जो है वो जल्दी नीचे नहीं करी। उनके पास कोई बंदूक नहीं थी, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। पता नहीं कितने स्कूलों में बच्चे अपने पिताजी की बंदूक लेके चले गए और अपने ही कलीग्स को, अपने क्लासमेट्स को मार दिया। 1000 से ज्यादा ऐसे बच्चे मर चुके हैं अमेरिका में। तो अमेरिका को उसकी फिक्र नहीं है, अमेरिका को भारत की बड़ी फिक्र लगी हुई है। सर मोदी साहब बताएं। नहीं, भारत की फिक्र आप देखोगे, अभी कुछ दिन पहले हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था भ्रष्टाचार के मामले में। उस समय जर्मनी हो चाहे अमेरिका चुपचाप शांत से बैठा था या हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। तो केजरीवाल के इतने बाहरी तत्वों से, चाहे वो खालिस्तानी हो चाहे बाहर के तोड़ने के वाले जो तत्व हैं उनके साथ जुड़ाव है, उसके कारण वो जर्मनी और अमेरिका जैसे देश भी उनके साथ होने का एक स्वांग रच रहे हैं। लेकिन भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने बहुत अच्छी तरीके से उनको एमईए में बुलाया और उनसे राय ली कि उन्होंने इस तरह के वक्तव्य क्यों दिए। तो इस तरह से समझ में आना चाहिए कि भारत अब पहले जैसा नहीं रही, भारत आंख से आंख मिलाकर बात करने वाला है। तो उन्होंने अमेरिका के भी राजदूत को भी बुलाया था, जर्मनी के भी राजदूत को बुलाया था, फिर उन्होंने तुरंत अपना स्टैंड चेंज किया। है ही नहीं अभी, वो तो सेकंड सेक्रेटरी हैं जिनको बुलाया गया था। अमेरिका का तो अभी मिनिस्टर है नहीं। लेकिन मेरा यहाँ पे एक सुझाव है आपके लिए, आप इसके बारे में क्या बोलते हैं। मैंने कल भी यही बात पूछी थी, भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्मण सौजी साहब हमारे साथ थे, आज मैं वही बात आपसे पूछ रहा हूँ। मुझको ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी का जो नेतृत्व है उसको ये कहना चाहिए अमेरिका, यूएसए और जर्मनी दोनों को कि भैया ये हमारा आपस का मामला है, हम लोग सुलझा लेंगे। हमारे कोर्ट यहाँ पर सक्षम है हर एक को इंसाफ देने में, कानून से काम करने में। आपको हमें कोई सीख देने की जरूरत नहीं है। क्या आपको लगता नहीं है कि आम आदमी पार्टी को ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए? मुझको ऐसा लगता है जी देनी तो चाहिए थी, लेकिन इनके ऑलरेडी जब वो
20 के चुनाव में जब वो पाकिस्तान में लड़ रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे चंदे खालिस्तानियों से लिए हैं। पन्नू ने भी ये चीज बोल दिया है। तो वो उनके बाहरी तत्वों से शुरू से आम आदमी पार्टी का जुड़ाव रहा है, बाहर के देशों से जो इंडिया के इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप कर रहे थे। तो ये आम आदमी पार्टी से आशा करना तो गलत होगा, लेकिन ये आप आशावादी, आप ये बोल करके तो भारतीय जनता पार्टी की छवि को जरा कम कर रहे हैं, अमित शाह साहब की छवि को जरा कम कर रहे हैं। बाहर से खालिस्तानी तत्वों से पैसा आ रहा है और आपको पता नहीं है सर, ऐसा कैसे सर? नहीं नहीं, क्या कर रहे हैं सर ये अजीत डोभाल साहब? मैं सच बोल रहा हूँ, अजीत डोभाल साहब केस कर देंगे सर आप पे अगर ऐसा बोलोगे आप। पता चल रहा है, इसके लिए तो भ्रष्टाचार में जेल में गए हुए हैं सर। कहाँ है इसके लिए? तो सर कहाँ है, अकाउंट कहाँ है? अरे सर वो ये तो ऑन रिकॉर्ड है की बात है, ये बात तो आप नई बात बोल रहे हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है कि पंजाब चुनाव में अरविंद केजरीवाल खालिस्तानी मूवमेंट के नेता के घर पे रुके थे कि नहीं रुके थे? तो ये चीज कहना, खालिस्तानी नेता सर, कौन सा खालिस्तानी नेता? आप थोड़ी है वहां पे, ऐसी क्या बात है? वो तो मोदी जी भी जब 26 जनवरी 1992 में जब वो फ्लैग होस्टिंग हुई, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी भी भेष बदल करके, शायद आपको ये मालूम नहीं है, मोदी जी की बहादुरी की दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने कभी इसका ढिंडोरा नहीं पीटा है। तकरीबन 1.5 साल तक मोदी जी ने कश्मीर में काम किया है। कश्मीर के एक एक गांव में गए 92, 93, 94 में, वहां पर उन्होंने ये नाटक किया कि मैं एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूं, आप बताइए आपकी क्या क्या समस्याएं हैं। वो नेटवर्क जो उन्होंने बनाया उस वक्त, वो आज उनको काम आ रहा है। तो ऐसा नहीं है, मोदी जी भी गए, बहुत लोगों के, मतलब आतंकवादियों के घर में गए, हर एक से मिले और उनको उन्होंने सुधारा भी। सर ये तो कोई क्रिटिसिज्म नहीं हुआ पंकज मोदी साहब। नहीं, अब दो तीन दिन पहले एक पन्नू का वीडियो आया था जिसमें वो साफ कर रहे थे कि हमने चंदा केजरीवाल को दिया, केजरीवाल की पार्टी को दिया है। तो इसका क्लैरिफिकेशन आम आदमी पार्टी खुद ही कर दे कि वो बाहरी तत्व जो भारत को तोड़ने का काम करते हैं उनसे जुड़े हुए हैं कि नहीं। केजरीवाल साहब तो कहते हैं कि ये पन्नू साहब के साथ तो आपके कांटेक्ट है, आपने बुलवाया उनसे, ऐसा वो तो ऐसा बोल रहे हैं। वो केजरीवाल की शुरू से आदत रही है, आम आदमी पार्टी की जो चीजें उन पे आने वाली रहती है वो ऑलरेडी किसी दूसरे की तरफ उंगली कर देते हैं। तो इसमें कुछ बोलना हंसी का पात्र की तरह है। एक चीज है कि रघुराम राजन जो हमारे फॉर्मर गवर्नर है, आरबीआई गवर्नर, उन्होंने कहा कि ये विकसित भारत का जो आप ये जो हवा फैला रहे हो वो है ही नहीं, कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट, इंडिया इज मेकिंग अ बिग मिस्टेक इन बिलीविंग about its own economic growth जो मोदी साहब प्रोजेक्ट कर रहे हैं और कह रहे कि विकसित भारत एक जो बोल रहे कि सुपर पावर, मतलब 2047 का सुपर पावर का घोषणा, बोले नहीं हो सकता, ये हवा है, ये आपको नहीं करना चाहिए, ये गलत है। तो आगे जाकर कहता कि एजुकेशन में इतना खराब स्थिति है कि स्कूल में ड्रॉप आउट हो रहे हैं, बोले बच्चे हाई स्कूल के एजुकेशन पूरा नहीं कंप्लीट कर रहे, और जो कॉलेज स्कूल से कॉलेज है उसमें ड्रॉप आउट इतना ज्यादा हो चुका है कि आप कैसे विकसित भारत का सपना देख रहे हो? आप कैसे बोल रहे हो कि भारत एक महाशक्ति बनेगा 2047 में? बोले इट्स नॉट पॉसिबल। रघुराम राजन कह रहा है आप ये गलत कर रहे हो, बार बार इसको हाइप करके, मोदी जी इसको गलत कर रहे हैं हाइप करके। बोलिए। मैं रघुराम राजन जी की बात से इसी तरीके से, आप जरा उनके एक वीडियो पिछले बार देखे होंगे जब वो राहुल गांधी से डिस्कशन कर रहे थे, तो भारत की जीडीपी के बारे में उन्होंने कहा था कि 5% की भी जीडीपी अगर भारत इस साल कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन हमने 8 के आसपास ही तिमाही में क्रॉस किया है। तो रघुराम राजन की ऐसी इमेज बन गई है या वो इस तरह से सोचने लग गए जिस तरह से कांग्रेस पार्टी सोच रही है उस तरह से सोच रही है। हम भारतीय जनता पार्टी हो या एनडीए के घटक दल हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी जी भारत को विकसित या शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो किसी तरीके से भारत के लोगों का, भारत के नेताओं का मोरल डाउन हो, इसके लिए रघुराम राजन इस तरह का बयान दे रहे हैं। इन सब बयानों को ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूं कि वो बीच बीच में ऐसे आकर कुछ बातें बोल जाते हैं और मीडिया में चर्चा रहने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन भारत की जनता सब समझते हैं। पंकज मोदी साहब, लेकिन आज तो रघुराम राजन साहब ने कमाल ही कर दिया है। आपने सुना उन्होंने क्या कहा है? पता नहीं, शायद आपको मालूम नहीं है। रघुराम राजन साहब ने यह कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा पाक साफ ईमानदार तरीका इलेक्शन फंडिंग के लिए और कोई नहीं है। उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट इज रॉन्ग, द इलेक्टोरल बॉन्ड इज कंप्लीटली व्हाइट मनी एंड इट शुड बी अलाउड। ऐसा रघुराम राजन जी ने बोला है सर। तो वो आपके भी
तो आपके भी समर्थन में वो खड़े हुए हैं सर, ऐसी बात नहीं। नहीं, तो ये बात जब इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के बारे में जब हम लेकर आ रहे थे, तब अरुण जेटली ने संसद में ये बात बोली थी कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड लाने से इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड नहीं सर, इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो चुनाव में जो आने से काले धन का जो व्यापार चल रहा था नेताओं के बीच में, या फिर जो लोग चुनाव को ब्लैक मनी से हमेशा यूज कर रहे थे, तो उस चीज को रोकने के लिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड लाया गया था। तो इस चीज का समर्थन अगर उन्होंने किया तो वो अच्छी बात है, इस चीज का स्वागत होना चाहिए। आगे जाके जिस प्रकार से राहुल गांधी जी अन्याय जो बोले किसानों पर अन्याय कर रहा है बीजेपी सरकार, कॉर्पोरेट लोन वेवर करते हो आप, मगर आप किसान का लोन लेवर में फार्म लोन वेवर का बात ही नहीं करते। आप एमएसपी पे डिसेप्शन कर रहे हो, देयर इज नो प्रॉपर लॉ, यू आर हैविंग अ टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल मटीरियल्स, आप एग्रीकल्चरल मटीरियल्स को भी टैक्स कर रहे हो। नो सपोर्ट फॉर क्रॉप लॉस पे कोई सपोर्ट नहीं है। एंटी फार्मर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी। नाउ राहुल गांधी जी का कहना है कि 2024 के बाद जब राहुल गांधी जी सरकार बनाएगा तो ही विल हैव न्याय देने का जो पूरा एक फॉर्मूला करेगा। फार्मर लोन वेवर होगा, जीएसटी मुक्त, फार्मर्स का हर चीज को जीएसटी मुक्त कर देंगे, एमएसपी को लीगल स्टेटस दे देंगे, डीजल जो पॉलिसी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पॉलिसी है, उसको ठीक से डिफाइन करेंगे। अभी जो आयात निर्यात में बहुत प्रॉब्लम किसान को हो रहा है, किसान बीमा में ठीक कर देंगे। तो ये सब चीज राहुल गांधी जी ने एक रोड मैप बना दिया। किसान ऊपर अभी अन्याय हो रहा है, राहुल गांधी जी आके न्याय दिला देंगे। पंकज मोदी जी, इस पे मैं बोलना चाहूंगा, किसान भी समझते हैं इस चीजों को कि 2014 से पहले किसानों की स्थिति क्या थी देश में। 2014 के बाद जब मोदी जी सरकार में, तो सबसे पहले उन्होंने बहुत सारी चीजों किसानों के लिए की। उसमें से एक किसान सम्मान निधि की घोषणा थी। उसके बाद जो एक समय यूरिया के लिए लाइन लगी रहती थी दुकानों में, और उसके लिए पुलिस के द्वारा डंडे चलाए जाते थे, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद यूरिया का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे तरीके से किया गया, नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल हुआ। तो बहुत सारी चीजें हमने किसानों के लिए की है, जिससे किसानों को एक सुविधा हुई है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं, और प्रधानमंत्री जी ने बहुत बार ये घोषणा की है कि हम चाहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी हो। इसके लिए हम लोग बहुत लगे हुए हैं, और बहुत जल्दी ही एक अच्छा सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन आपको लगता है, जो अभी प्रदीप जी ने कहा कि राहुल गांधी जी ऐसा प्रॉमिस कर रहे हैं, आपको लगता है कि लोगों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा, किसानों के ऊपर? कि भाई किसान तो बोल रहा ना, मैं परेशान हूँ यार, मतलब किसान 70 साल से उनका राज देख चुके हैं कि उन्होंने किस तरीके से किसानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह देखा, और किसान गरीब के गरीब ही बने रहे। कभी आपने देखा हो गांव के किसान का बच्चा किसान बनने की कोशिश नहीं करता था, वो हमेशा गांव से निकलकर शहर की तरफ आता था। लेकिन अभी स्थिति ऐसी हो गई है कि किसान संपन्न हो रहा है, और उसके बच्चे भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो राहुल गांधी का ये कहना कि वो किसानों के लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो इसमें मैं मानता हूं कि किसान इस चीज को अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्होंने 70 सालों में किस तरीके से किसानों को और गरीब बना के रखा, और हमारी जो मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है वो किसानों को आगे ले जाने के लिए कटिबद्ध है। भर्ती भरोसा पहली नौकरी पक्की, भर्ती भरोसा पहली नौकरी पक्की, पेपर लीक से मुक्ति, सामाजिक सुरक्षा, जो छोटे छोटे काम करते हैं सैनिटरी वर्कर्स, उनको सुरक्षा देंगे। युवा रोशनी, युवाओं को जो स्टार्टअप्स कर रहे हैं उसके लिए राहुल गांधी जी फंड के लिए 5000 करोड़ सेपरेटली उन्होंने बैंक करके रखे। महालक्ष्मी योजना, आधी आबादी पूरा हक, 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट जॉब्स, शक्ति का सम्मान, अलग अलग चीज जो लेके राहुल गांधी जी ऑलरेडी एक प्लान बना चुका है। तो इसको कैसे बीट करेंगे? जैसे इन्होंने कहा कि पहली नौकरी पक्की, तो जनजाति स्कीम है कि 1 करोड़ लोगों को, वो जैसे कॉलेज से निकला 1 लाख पर ईयर का स्टाइपेंड में गारंटीड नौकरी देगा। तो ये सब एक चैलेंजिंग टास्क है आपके सामने पंकज मोदी जी, कि आप इसको कैसे मुकाबला करेंगे। एक तो उनका यात्रा निकला, वो कांग्रेस का कहना था सक्सेसफुल था, अभी जो एक्शन प्लान लेके रखा है 2024 चुनाव के लिए, तो क्या आपको लगता है कि एक कंपटीशन ऑलरेडी बढ़ गया है और राहुल गांधी अटैकिंग मोड पे आ चुका है?
राहुल गांधी और कांग्रेस के अटैकिंग मोड में आ गए। उनके सहयोगी दल ही उनको नहीं समझ पा रहे, जनता तो दूर की बात है समझेगी। उनके महाराष्ट्र में जो सहयोगी दल है वो दूर भाग रहे हैं। बाकी जगह को इस यूपी में चले जाए तो अखिलेश अपनी अलग ही दुनिया बनाए हुए हैं। तो इस तरह से केवल झूठे झूठे वादे करने से जनता समझने लग गई है। केजरीवाल के बाद समझने लगी, केजरीवाल के झूठे वादे के बाद भारत की जनता बहुत अच्छे तरीके से समझ रही है कि राहुल गांधी केजरीवाल को फॉलो करके ऐसे झूठे झूठे वादे दे रही है। और मैं मानता हूं कि जनता इस भ्रम में बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है। और उन्होंने 10 साल का हमारा कार्यकाल देखा है जिसमें हमने भारत को बहुत आगे ले जाने की हर कोशिश की है। और आने वाले 5 साल में अभी तो ये बिल्कुल जैसा देवेंद्र फडणवीस जी कह रहे हैं कि अभी तो पिक्चर अभी बाकी है, तो अभी आगे के 5 साल 10 साल में देखने को मिलेगा भारत किस ओर आगे बढ़ता है। भारत की प्रगति एक नए आसमान को छुएगी। लेकिन जहां तक महाराष्ट्र का प्रश्न है, क्योंकि आपने देवेंद्र फडणवीस जी की बात करी, अजीत दादा पवार बड़े ना खुश हैं। वो कहते हैं यार सिर्फ 4 सीट दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं हमारे साथ। उनके वर्कर्स भी बड़े ना खुश हैं। उसके अलावा एक शिंदे साहब हैं, वो भी बैठे हुए हैं थोड़ा सा कोप गृह में। मैं मानता हूँ, देखिए साहब, मैं मानता हूँ जहाँ तक विनेबिलिटी का सवाल है, जीतने का साथ जहाँ तक सवाल है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बड़े अकल से काम करना पड़ेगा। सीधी बात है, यहाँ पे इमोशन से नहीं अकल से काम होगा कि विनेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, कौन कहाँ से जीत सकता है। इनफैक्ट एक छोटी सी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, पता नहीं आप वो सुनना चाहें ना चाहें, अगर ना भी सुनना चाहें फिर भी मैं आपको सुना रहा हूँ। सर 2019 में जब चुनाव हुए यहाँ पे, हम लोगों ने, मैंने तो खैर बहुत कोशिश करी, हर एक से बात करके ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अकेले लड़ना चाहिए। आप शिवसेना के साथ लड़ रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ आप अकेले लड़िए, आपकी आराम से 155-160 सीटें कहीं नहीं जाती। ये मेरे वर्ड हैं और आपके जितने नेता हैं आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं कि मैंने इनको कहा कि नहीं कहा, और ये लिखा भी मैं ये मान करके चलता हूं उस वक्त आप लोगों ने गलती की। आप लोग पता नहीं किस हाव भाव में थे, क्या था, इमोशनल अटैचमेंट क्या थी, और उसके बाद क्या हुआ आपको मालूम है। कहीं ऐसा तो नहीं है आज भी आप इमोशन में बह जाएं और आप ज़्यादा सीटें दे दें उधर, क्योंकि लोग ज़रा ज़्यादा उछल कूद कर रहे हैं और अपने लोगों को नाराज़ कर दें। मोदी साहब बताएं। नहीं, जहां तक आपने विधानसभा की बात की, आपने बात कही कि हमें अकेले लड़ना चाहिए था 2019 में, तो मैं कहना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति, हम जो एनडीए, जब हमारे शिवसेना शुरू से हमारी सहयोगी दल रही है तो हमें उसे छोड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और जहां तक बात है तो ये उन्होंने धोखा उन्होंने देने की कोशिश की, उसके बाद उन्हें आज वो भुगतना पड़ रहा है। तो अभी स्थिति जो आपने कही, अजीत पवार साहब हो चाहे शिंदे साहब हो, तो वो हमारी एनडीए के एक बहुत सहयोगी इंपॉर्टेंट घटक दल है और वो समझते हैं कि हमारी अभी हमारा टारगेट 400 पार का है एनडीए को, तो वो इस चीज में हमारे सहयोगी कर रहे हैं। और जहां तक बात है कि कम सीटें या ज्यादा सीटें, हम लोग मिलजुल कर इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। हम वो इंडिया अलायंस की तरह नहीं है जो बिना बताए डिक्लेयर कर दे रहे हैं 17 सीटें, तो कोई उधर से उस मामले में शरद पवार नाराज हो जा रहे हैं तो कांग्रेस अलग ही, संजय निरोर अलग ही संजय राउत के खिलाफ या कीर्तिकर के खिलाफ अलग बयान दे रहे हैं। तो हमारी एनडीए के घटक दल बहुत सोच समझ के चीजों को बढ़ रहे हैं। और जहां तक हमारा सबका लक्ष्य एक है, एनडीए के जितने भी दल हैं, कि 400 पार का जो हमारा लक्ष्य है वो किसी तरह कंप्लीट। लेकिन निरुपम साहब तो शायद आपके पास आ रहे हैं, सुनने में तो ये है बड़ी कोशिश कर रहे हैं बीजेपी में आने की, आप लोग ले नहीं रहे अभी तक, ऐसा कुछ है क्या? जी बिल्कुल नहीं, उनका अपना कांग्रेस को अल्टीमेटम देना था, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को, उन्होंने दिया है। वो उनकी अपने घर की खिचड़ी पका रहे हैं, उन्हें पकाने दिया जाए। सबका कहना है कि जो ऑपोजिशन का लीडर, पिलर्स ऑफ लोकतंत्र का पिलर्स को आप हिला रहे हो, मोदी जी हिला रहे हैं। बीजेपी शेकिंग द फाउंडेशंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी। जिस प्रकार से टोटलिटेरियन तरीके से एक के बाद शरद पवार साहब ने कहा ये एक टोटली एक डिक्टेटरशिप के माहौल में हम लोग जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा कि ऐसे हमने अनडेमोक्रेटिक और टोटलिटेरियन सरकार को ऑपरेट करते हुए कभी नहीं देखा। तो ये, और दुनिया भर से, जैसे भजन साहब ने सुना, दुनिया भर से रिएक्शन आने शुरू हो गया। और अमेरिका, यूएस कायम है, बोले कि हमने जो बोला हम उस पर कायम है कि ये सब जो बैंक अकाउंट फ्रीज करना, ऑपोजिशन लीडर को अंदर जेल में डालना और लेवल प्लेइंग फील्ड ना इनकॉर्पोरेट करना, ये पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को हिलाने वाली बात है। तो क्या धीरे धीरे ऐसे एक माहौल बन रहा है कि आप अनडेमोक्रेटिक है, आप टोटलिटेरियन तरीके से, डिक्टेटोरियल तरीके से
आप आपके सरकार चला रहे हैं, गवर्नेंस कर रहे हो, पंकज मोदी जी। जिन जिन महानुभावों का आपने नाम लिया, उन लोगों के जो भ्रष्टाचार के जो गोरख धंधे थे, आज वो बंद हो चुके हैं। जितनी भी विदेशों से फंडिंग थी वो खत्म हो चुकी है। इसके लिए वो इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो इन बातों को ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। भारत का लोकतंत्र, दुनिया जानती है कि ये लोकतंत्र की जननी रही है, और दुनिया भारत जो है इस चीज को हमेशा आगे लेके चला है दुनिया के बहुत सारे राष्ट्र में, कि लोकतंत्र के हिसाब से आगे चलनी चाहिए। तो अगर भारत अगर दुनिया के मानचित्र पे एक गुरु बनने की इमेज में खड़ा है, तो इस तरह की बातें करना बिल्कुल ही गलत बात है। मैं शरद पवार चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी से बोलना चाहूंगा, इस तरह के पुराने नेता हैं, उनको इस तरह से बातों से देश के छवि को धूमिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और उन्हें समझना चाहिए कि देश के विकास के लिए अगर विपक्ष में होने के बावजूद भी अगर उनकी हमारी सहायता करते तो इसमें ज्यादा उनका नाम होगा, न कि भारत को बदनाम करने की कोशिश कर। मोदी जी कहते हैं कि 70 साल में 70 एयरपोर्ट बने और हमने 10 साल में 140 प्लस एयरपोर्ट्स बनाए। IIMs जितने 70 साल में बने, IITs उससे दुगना हमने 10 साल में किए। बार बार आप लोग दिखाना चाहते हो कि 70 साल में कुछ काम ही नहीं हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कह रहा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन कौन लेके आया, व्हाइट रेवोल्यूशन किसने लेके आया, PSUs को किसने बनाया, टेलीकॉम रेवोल्यूशन, IT रेवोल्यूशन किसने लेके आया, लिबरलाइजेशन का माहौल जो भारत में आना था, एक लहर जो गेट्स खोलकर फ्लड हो गया इस देश में, वो किसने लेके आया। तो ये आपका बार बार कहना कि 70 साल में कुछ हुआ नहीं है, ये सब 10 साल में हो गया, दिस इज समथिंग नॉट ढंग से, ये ठीक नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का कहना है और कांग्रेस का कहना है। तो आप इसको कितना जोर दे रहे हो कि 70 साल में कुछ हुआ नहीं काम। ये तो गिना के सुना है मल्लिकार्जुन खड़गे, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, PSUs, ये वो सब कांग्रेस ने किया है। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि 70 सालों में गरीबों की संख्या कितनी थी? अगर इन्होंने इतना सारा कुछ किया, इन्हें इतना रिवॉल्यूशन वगैरह लाया, तो फिर देश में गरीब इतने सारे क्यों थे? हमारे 10 साल के शासनकाल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाकर लाया गया। तो ये कहना हास्यास्पद ही है कि उन्होंने बहुत सारे चीज किए हैं, वो अपना क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं, लेकिन उनको ये बताना पड़ेगा कि देश की जनता इतने दिन तक पीछे क्यों रही है। आज भी देश से 75 साल आजाद होने के बावजूद भी देश अब तक विकसित देश क्यों नहीं बन पाया, अभी विकासशील देश की रास्ते पे क्यों खड़ा था। और जहां तक बात है कि उन्होंने, इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, गरीबी क्या हटेगी, गरीबों को ही हटा दिया उन्होंने, और गरीब गरीब बनते चले गए। उन्होंने वोट बैंक की राजनीति की है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का ये कहना कि वो बहुत सारी चीजें कांग्रेस ने लाई थी, तो कांग्रेस का हमेशा लक्ष्य रहा एक वोट बैंक की राजनीति करके रखना, तुष्टीकरण की राजनीति करना। मनमोहन सिंह ने ही कहा था कि देश में पहला हक मुसलमानों का है, जबकि इस तरह के वक्तव्य प्रधानमंत्री को देने से बचना चाहिए। तो वोट बैंक की राजनीति देकर ये कांग्रेस शुरू से इस तरह का काम करते आई है। तो ये जनता पे छोड़ दिया जाए कि वो देख रही है कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया और हमने इन 10 सालों में क्या किया। जनता बहुत अच्छे तरीके से समझती है, और 2024 के चुनाव में ये देखने को मिलेगा। लेकिन मोदी जी, सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि आपके जितने भी कैंडिडेट हैं उसमें शायद सिर्फ एक ही मुस्लिम कैंडिडेट है। पूरे जितने भी आपके कैंडिडेट हैं शायद सिर्फ एक मुस्लिम को शायद आपने टिकट दी है, शायद, वो भी मुझे पक्का नहीं है। ऐसा क्यों सर? हाँ, तो मैं इस पे बोलना चाहूंगा। हाँ, चुनाव हम बेसिकली लड़ते किस लिए हैं? जीतने के लिए। तो हमारा जब गणित जीतने के हिसाब से जो रहेगा उस हिसाब से हम कैंडिडेट को खड़े करेंगे। हम ये देखकर कभी नहीं कैंडिडेट खड़ा करेंगे मुस्लिम कितने हैं, जैन कितने हैं, पारसी कितने हैं, हिंदू कितने हैं। हमारा विनिबिलिटी देखी जाती है कि हम जिस क्षेत्र पे लड़ रहे हैं चुनाव, वहां जीतने के हमारे चांसेस कितने हैं। तो इस चीज के लिए मैं हमेशा आपको भी कहना चाहूंगा, और बाकी जो भी विपक्ष आरोप लगाता है, कि इस चीज को न देखकर ये समझा जाए कि हमें चुनाव जीतने का लक्ष्य, न कि हम जातियों या फिर संप्रदाय में बांटकर उसको देखें। जी, तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस बार आपके मुताबिक 370 का लक्ष्य पक्का है? जी बिल्कुल। आपका? जी बिल्कुल। और 400 पार? एकदम बिल्कुल। और विपक्ष ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की किस्मत बड़ी अच्छी होगी अगर वो 150 भी पार कर जाए। 4 जून को इस मामले में बैठेंगे हम लोग, बात करेंगे फिर, और देखिएगा कि 400 का पार, हम जो आंकड़ा हमारा एनडीए का है वो अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा, 370 भी पार करेंगे। जी, दुरुस्त बात। गिनती पर बहुत जोर डाल रहे हैं राहुल गांधी जी, बोलते गिनती कराओ, जातीय जनगणना एब्सोल्युटली एसेंशियल। जब तक जातीय जनगणना होगा, कोई चीज जो बोलते हैं हम लोग
सोशल एम्पावरमेंट नहीं होगा, सोशल जस्टिस नहीं होगा। उनका कहना है कि बैकवर्ड, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज, टोटल इन पर अन्याय हो रहा है। आप कोई भी बड़े कॉर्पोरेट्स लो, टॉप मैनेजमेंट में आपको ना बैकवर्ड मिलेगा, दलित मिलेगा, आदिवासी, माइनॉरिटीज, ये टॉप लेवल में मिलेंगे नहीं। तो ये 88% लोग अफेक्टेड है। राहुल गांधी जी का कहना है 88%, ये जो दलित, बैकवर्ड, आदिवासी, माइनॉरिटीज मिलके 88% है। और ये हमेशा हर सेगमेंट में मोदी जी इन पर अन्याय किया है, और राहुल गांधी जी न्याय का एक फॉर्मूला लेके आए हैं। तो ये 88% जो आंकड़ा दे रहे राहुल गांधी जी, क्या इन पे अन्याय हो रहा था? ये आपने कुछ कैलकुलेशन किया इसके बारे में? मैं देश को जातियों में बांटकर और वोट बैंक की राजनीति करने का जो घृणित काम वो कांग्रेस या राहुल गांधी भी कर रहे हैं, वो भविष्य में इसके कितने दुष्परिणाम कांग्रेस के लिए होंगे, ये कांग्रेस को भी पता चलेगा। अभी क्या आप ये चीज कांग्रेस से या राहुल गांधी से पूछ सकते हैं कि अब तक कितने आदिवासी और पिछड़े लोगों को उन्होंने पार्टी अध्यक्ष बनाया? जितने भी कांग्रेस के अब तक राज्य में अध्यक्ष हैं वो कितने सारे ओबीसी से आते हैं, या माइनॉरिटी से आते हैं, या फिर एसटी कम्युनिटी से आते हैं? तो इस तरह की बातें करना, वो हिंदू समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से, जिस तरह से हिंदू एकमुश्त होकर मोदी जी को वोट दे रहा है, उसको जातियों में बांटकर किसी तरह विभाजित किया जाए। उनका अंतिम लक्ष्य यही रहा है कि किसी तरह भारत को एक जातियों में विभाजित करके एक वोट बैंक की राजनीति की जाए। लेकिन इसमें वो सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि देश की जनता विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ रही है। उन्हें जात पात से लेना देना नहीं है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है कि हमारे लिए सिर्फ 4 जातियां हैं, युवा, गरीब, किसान और महिला, तो उसको लेकर हम लोग आगे चल रहे हैं। और देश की जनता मोदी जी के इस नारे से पूरी तरीके से सहमत है कि इन चारों को अगर आगे बढ़ाया गया तो देश आगे खुद ब खुद बढ़ जाएगा। तो कांग्रेस की इन बातों से आप लोग भी ज्यादा वैल्यू मत दीजिए। वो जातियों में बांटने की कोशिश करिए, लेकिन जनता इस चीज को समझेगी। नफरत के दुकान में प्यार और मोहब्बत के राजनीति खेलना चाहते हैं राहुल गांधी जी। बोले नफरत बहुत फैल गया है पूरे देश में, मैं प्यार और मोहब्बत की दुकान हर गली, हर गांव, हर शहर में बसाएंगे। पंकज मोदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर फॉर टॉकिंग टू अस एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने लक्ष्य को आप अचीव करें। 370 का सिर्फ बीजेपी के लिए और 400 पार एनडीए के लिए। जैसा आपने कहा 4 जून को हम लोग जरूर बैठेंगे ये देखने के लिए कि आप अपने लक्ष्य के कितने पास आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लक्ष्य को पार करेंगे, ऐसी आशा है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय सिया राम सर। थैंक यू। जय सिया। I don't think the BJP is going to admit that they are wrong anywhere, or the fact that they are not going to be, you know, diverted from the target of 400 plus. And they are very solid on what the country requires now, and they know exactly what the country expects of parties when general elections are concerned. National security, Rashtravad with their import having pride on the very fact that you are Indians. Development is a big agenda, appeasement of none, and where money power and muscle power is concerned, I don't think any other party is as strong as Prime Minister Modi and the BJP today. Right. But the only thing is that there are lots of equations which are working out in so many places. I know, people come along and say that Mr. Modi is above all equations. But all the same, on the ground level, the Northeast is still a big question mark, apart from Assam and Meghalaya. Everywhere else, it's a big question mark, all thanks to what took place in Manipur. The South, whereas the BJP is very hopeful that they might win in quite a few places, but still, one never knows. And as far as Maharashtra is concerned, I understand. एक तरफ मायावती, दूसरी तरफ प्रकाश अम्बेडकर, कांग्रेस की मुश्किल जरा बढ़ गई है। और उसी के बारे में पूछते हैं हम हमारे मित्र सुरेश चंद्र राजन